हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। American aid to India. There was a slow start to the economical assistance with the India received for the USA. India as a food production at the time of independence was insufficient to feed its a million. It is the industries and service sector were also quite backward, and that is why India was the dependent on other countries for the bilateral assistance. The first of the many food aid is a supplement to be India from to USA started in 1951. In 1954, the USA's Congress passed a public law is a 480 is a PL 480 allowing to the sale of surplus America wheat for India. India is a continue to receive a food grain from to the USA under PL 480 till their year 1960 century. There is the most important. The story of suspensions of the political relationship is a use only one side of the coin. During the Cold War, especially to the political difference, India received a significant economics and food aid from to USA right from 1950 centuries. In addition to the food assistance, the USA had provided the large bilateral developmental assistance to India. However, you must not forget that his assistance was not available for the development of heavier industry, but in the field of agriculture, development of raw materials and minerals. For creating a heavy industry base, India had to turn to the Soviet Union. The development assistance given by the USA reached a peak of around $500 million in 1962. During the Bangladesh War, the USA frozen to its economics aid to the India. However, the bilateral assistance started in 1978 after the long gap. But the importance of bilaterals aid to decreasing from the late 1970th century onward because of the substantial increase is a multilateral assistance given by the International Development Authorities, means IDA. The soft money is affiliate of the World Bank. Much of the IDA's money was, of course, is funded indirectly by USA. In the 1980th century, the World Bank lending is typically run into the is $2 million, 1 million is 100 crores or 1,000 million. There is so for India as a USA stand to avoid their multilateral financial institution. The maturity is more than to bilateral aid. USA has no objection to clear India's request for the $5.8 billion loan from to the International Monetary Fund, means IMF. In 1981, the largest ever sought by the member country. The next here is a contemporary Indo-USA relation. The end of the Cold War in the 19th century left the United States as a lone upper power. This new is related both to the reappearance of the Indo-USA relation. New opportunities come up to the wearing India and USA close. The military and military contact is a common sense. America investment is started. The building in the India is a skill of professionally and communication and information technology projected India to USA in a positive light. President Clinton is a paid a successfully visit to the India in 2000. On the political front of terrorism, non-proliferation has been a major issue. One of the turning point of the Indo-USA relation in the recent year was the American role in the Kargil crisis in 1990. India is a view of President Bill J. Clinton's is a role of during to 1990 Kargil crisis in a persuading Pakistan to withdraw to troops from to the India side of line of control. LOC in a Pakistan is a Kashmir as an important is a milestone. There is the most important here. LOC Kashmir as the important milestone. India tried to impress the importance of fighting the means of terrorism by the highlighting the Pakistan as a role in the Jammu and Kashmir, but the United States did not show much of interest in action against terrorism till the USA cities. The New York and Washington were stuck in a
big way on the 11th September 2001. India has offered fully cooperation to the USA in a counter-terrorism campaigns. However, our pledge to the USA start a Pakistan support to the Taliban in Afghanistan and the just as a Kashmir made it is a epicenter of international terrorism field of deep ear. The USA needed Pakistan more than India to contact Al Qaeda terrorist. So the US differentiated to the good terrorist and bad terrorist. They extended a sympathy when terrorists of attack to Kashmir Assembly and the Indian Parliament in October and December 2001. Respectively, annexation of the annexed to the allies in their war against terrorism, USA reverted to the Cold War is a partnership with the Pakistan. Was a highly critical of the military regime to the Pakistan ruled by the General Pervez Musharraf is a Washington now to the welcome Musharraf as a fully fledged partner in the international coalition against the terrorism. The Bush of administration felt that there is a sanctions against Pakistan pledged provided a generous assistance and give the Musharraf government is a legislation see it is as never before the enjoining. India is legislation is fair to the Washington is would be tailored to award to the Islamabad once is the more. USA was alarming that the event might go out of control to show a New Delhi that it took seriously India as a accusations about the Pakistan as a correlations in this attack. The administration of the President George Bush placed the two Pakistan as the base group. India thought responsible for their attack on the USA list of the terrorist organization. Will not as public CC accepting India's claim that the Pakistan government itself was involved in the terrorist activities. The Washington is a what is action clearly implied that is the Islamabad could and the must be a more to be cracked down on the terrorism. USA beside a country like Canada helped India establish a nuclear power station in 1963. But their corporations come under to clouded in 1970th century because of India as a peacefully nuclear expansion of is a Pokhara in 1974. And India is a refusal to the sign nuclear non-proliferation treaty. In 1978, the USA Congress passed the Nuclear Non-Proliferation Act in 1978, and this law is stipulated the uranium could be exported that those countries which allow all there is a nuclear plant to be inspected and the safety guard by the International Atomic Energy Agency means IAEA. It must be not be forgotten that is a non-proliferation has been to the steadfast goal of USA and the major difference between the two countries over nuclear issue precised the USA hope that India would be signed to the comprehensive test is a ban treaties means CTBT of 1996 but India did not when it is a detonated 5 nuclear bomb in May 1998 against to the Pokhara and declared itself a nuclear weapon state. The USA imposed the military and economical sanctions. Bilateral relations seem to be have reached a new low, but India stood it is a ground. For 2 years, a number of discussions between just one scene. Then the foreign minister of India and stopped Talbot, their US Deputy Secretary of State here held. Not signed the earlier 19th centuries had to two countries engage each other in such a serious and sustained fashion. This is discussion is transformed to the bilateral relation to large extent and in 1999 USA Congress lifted some of the sanctions against India and this was the first among many such subsequently instances of easing of the sanctions of Congress. Recently, there is a growing to the awareness in the USA to the recognize India as a responsible country with a nuclear weapon. With India is opening up to the economic in the 1990s centuries investment by the American company rather than to the era come to be looked up more important.
The role of the young Indians in the information technology is a computer hardware and software industry added a new dimension to the trade-off between India and the USA. The further those IT profession who is the shutting down in the USA become to more successfully single ethnic groups there. They help it to create a different image of India in America. There is the most important here trade between India and the USA in 2003 to relate to the round of is $18 billion. The hard earnings of things about there that India export to the USA was around $30 billion and the US export to the India was to the turn of is a $5 billion. But trade between to China and the United States is totally to around to the $180 billion, and there is the most important here. Chinese export to the USA was about $150 billion, whereas the US export to China was around $28 billion. Our point is the note there is that the cities of the Shanghai is China draw to more American investment than there is a wall of India. पॉइंट जो है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत को अमेरिकी सहायता। भारत को जो है अमेरिका ने कई बार सहायता किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इनकी मित्रता जो है ऊंची और नीची जो है खाइयों में गिरती रही है, लेकिन फिर भी संभलती गई है। कहते हैं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया पाकिस्तान ने जो भारत और अमेरिका के बीच जो है मित्रता का संबंध टूटा। कहते हैं अमेरिका द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत धीमी थी लेकिन अच्छी थी। स्वतंत्रता के समय भारत का खाद्य उत्पादन इसी करोड़ों की जनसंख्या के लिए अपर्याप्त था, क्योंकि भारत में उपज बहुत ही कम थी और जनसंख्या अधिक था। इसके औद्योगिक और सेवा क्षेत्र भी बहुत पिछड़े हुए थे। इसी कारण द्विपक्षीय सहायता के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। खाद्य संबंधी सहायताओं में सबसे पहली सहायता अमेरिका ने 1951 में आरंभ हुई थी और 1954 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक ब्लॉक लॉ 480 जारी करके अतिरिक्त अमेरिकी गेहूं को भारत में जो है बेचने की अनुमति दे दी थी। 1970 के आरंभ तक PL जो है 480 के अंतर्गत भारत यह सहायता प्राप्त करता रहा। राजनीतिक संबंधों में संदेह की कहानी सिक्के का केवल एक ही पहलू था। शीत युद्ध के दौरान राजनीतिक असमानताओं के बावजूद 1950 से ही भारत को आर्थिक और खाद्य सहायता मिलती रही। खाद्य सहायता के अतिरिक्त अमेरिका ने भारत को विकास में बहुत बड़ी द्विपक्षीय सहायता प्रदान भी की। फिर भी यह स्मरण रहे कि यह सहायता भारी उद्योग के विकास के लिए नहीं थी, बल्कि यह कृषि, कच्चे माल और खनिज के विकास के लिए थी। एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए भारत को सोवियत संघ की ओर रुख करना पड़ा। अमेरिका द्वारा विकास के दी गई सहायता जो कि लगभग $500 बिलियन थी, 1962 में चरम सीमा पर पहुंच गई। बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी, परंतु एक लंबे समय अंतराल के बाद 1978 में द्विपक्षीय सहायता फिर से आरंभ हुई। परंतु 1970 के बाद द्विपक्षीय सहायता का महत्व कम हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी IDA और विश्व बैंक के संबंध में बहुमुखी सहायता में तेजी से विकास हुआ। यद्यपि IDA का अधिकांश धन अमेरिका का ही था, जो कि प्रक्षेप रूप से IDA के सबसे प्राप्त होता था। 1980 के अंत तक विश्व बैंक की कर्ज देने की जो क्षमता लगभग $2 बिलियन हो गई थी। अंततः भारत के लिए बहुमुखी आर्थिक सहायता द्विपक्षीय सहायता से अधिक महत्वपूर्ण था। अमेरिका ने भी भारत को जो है 5.8 बिलियन ऋण के अनुरोध को 1981 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, समकालीन भारत और अमेरिकी संबंध। कहते हैं 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका को अकेली महाशक्ति बना दिया और इस वास्तविकता से भारत अमेरिका संबंध का एक नए प्रकार का जो है मूल्यांकन किए जाने लगा। इसे भारत और अमेरिका को जो है निकट आने के लिए नए अवसर प्राप्त होने लग गए। सैनिक संबंधों की शुरुआत हुई और अमेरिका के निवेश होने लगे। सूचना और संचार तकनीकी कुशल व्यवसाय से भारत की छवि को अमेरिका में राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। अमेरिका और भारत के रिश्ते को नया मोड़ देने वाले सबसे हालिया घटना थी जो 1999 में बदलाव लाने में कारगिल संकट के समय अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका प्रमुख थी। यानी जब कारगिल में दुर्घटना घटी थी, जहां पर जो है पाकिस्तान के साथ हमें दो चार हाथ करना पड़ा था, तो उस समय जो है
अमेरिका की तरफ से जो है बहुत बड़ा जो है सहयोग देने की बात कही गई थी। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 2000 में भारत का काफ़ी सफल दौरा भी किया था और राजनीतिक दृष्टि से आतंकवाद तथा परमाणु प्रसार मुख्य मुद्दे थे। विगत वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान व कश्मीर में उनकी सेनाओं को नियंत्रण रेखा से हटने के लिए कहने की भारत ने एक मील का पत्थर माना, क्योंकि वहां पर जो था बिल क्लिंटन ने अमेरिका के साफ शब्दों में ये बात कहा गया था पाकिस्तान के लिए कि कश्मीर में जो LOC पे उन्होंने सेना रखा था उनको हटाने के लिए पूरा बताया गया था, और ये सबसे बड़ी जो थी झटका था पाकिस्तान के लिए, और इससे जो था अमेरिका और इंडिया के जो संबंध थे कई मायने में सुधार हुए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका को मुख्य रूप से उछाल कर भारत आतंकवाद के संकट से संघर्ष करने के महत्व को प्रकाश में लाया, परंतु अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई जब तक कि उसके दो शहरों न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पे 11 दिसंबर 2001 को बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ। अमेरिका को आतंकवाद विरोधी अभियान में भारत ने अपना पूरा सहयोग दिया। यद्यपि अमेरिका ने हमारी दलील की अफगानिस्तान में तालिबान तथा जम्मू कश्मीर में यहूदियों की पाकिस्तान की सहायता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अड्डा बना दिया। निप्रभावी रही। अल-कायदा आतंकवादियों से संपर्क करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत आवश्यकता थी। अंत अमेरिका ने आतंकवादियों को अच्छे और बुरे आतंकवादियों के रूप में देखा। कश्मीर जो है विधानसभा और भारत संसद पर जब क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2001 में आतंकवादी हमले हुए तो उन्होंने सहानुभूति दिखाई। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में साथ देने वाले की सूची में अमेरिका ने फिर से शीत युद्ध के समय उसका हाथ देने वाले पाकिस्तान को सम्मिलित किया। जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में सैन्य शासन की कड़ी निंदा करने वाले वाशिंगटन के मुशर्रफ को आतंकवाद विरोधी लड़ाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जो है गठजोड़ एक पुण्य विकसित भागीदारी बनाया। बुश प्रशासन ने पाकिस्तान के ऊपर लगी बंदिशें हटा दी और उसे उदार रूप से सहायता देने का वादा भी किया गया। मुशर्रफ सरकार की जो है पूर्ण बताया और जैसे उसने पहले कभी नहीं कहा था, यानी अमेरिका को जो है पाकिस्तान फंसाने के लिए हर संभव जो है गिरगिट के चाल चलने लगा। युक्ति संगत रूप से भारत को यह लगने लगा कि वाशिंगटन का एक बार फिर से इस्लामाबाद की ओर झुक जाएगा। अमेरिका को सचेत भी किया गया कि घटनाएं नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। नई दिल्ली को यह दर्शाने के लिए कि इस मामले में पाकिस्तान का हाथ होने का भारत के आरोप को अमेरिका ने गंभीर से लिया है। बुश प्रशासन ने उन दो पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों को आतंकवादी संगठनों को अमेरिका सूची में डाल दिया जिन्हें भारत हमले द्वारा जिम्मेदार मानता था। भारत का आरोप के अनुसार अमेरिका ने खुलकर स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थी, परंतु वाशिंगटन के कथनों और कार्य से यह स्पष्ट था कि इस्लामाबाद आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था और उसे ऐसा ही करना चाहिए। अमेरिका ने कनाडा की भांति ही 1963 में भारत में परमाणु संयंत्र की स्थापना में सहायता भी की, परंतु 1970 के दशक में संयोग फिर धुंधला पड़ने लग गया, क्योंकि 1977 में भारत ने पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किए और परमाणु जो अप्रसार समझौते पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यानी भारत द्वारा 1974 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण की गई, अमेरिका को फिर से जो है इंडिया का दुश्मन बनाने के लिए अग्रसर बना दिया। यानी मित्रता टूट गई। उनको ये लगा कि इंडिया भी पावरफुल बनना चाहता है। फिर क्या हुआ, 1978 में अमेरिकी कांग्रेस ने परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित किया और इस नियम के अंतर्गत यूरेनियम का जो है निर्यात केवल उन्हीं देशों से किया जा सकता था जिनके परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने का अनुमति थी और जिनकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मापदंडों पर आधारित थी। स्मरण रहे कि परमाणु प्रसार अमेरिका का एक अपरिवर्तनीय लक्ष्य है। अमेरिका को आशा थी कि भारत 1996 में जो है CCBT पर हस्ताक्षर कर देगा, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया और जब भारत ने 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करके स्वयं को परमाणु शक्ति रखने वाला परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया तो अमेरिका ने सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। द्विपक्षीय संबंध अब गिरावट की ओर जाते प्रतीत होने लगे, परंतु भारत अपने निश्चय पर अड़ा रहा और 2 वर्षों तक भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिका के उप सचिव स्टोवल और टैलवॉट के बीच वार्ता हुई। दोनों देश के बीच जो 1960 के आरंभ से इस प्रकार की गंभीर और निर्णायक वार्तालाप कभी नहीं हुई। इन वार्तालापों में द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा प्रदान की और 1999 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध को हटा लिया।
कांग्रेस द्वारा आगे दी गई कई सहायताओं की ओर से यह पहला कदम था। अब अमेरिका भारत को परमाणु अस्त्रों से युक्त एक जिम्मेदार राष्ट्र मानता था। 1990 में भारत की खुली अर्थव्यवस्था के बाद अमेरिकी कंपनी द्वारा सहायता के बजाय निवेश को महत्वपूर्ण माने जाने लग गया। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय युवा पीढ़ियों की भूमिका ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के वे व्यवसायी जो अमेरिका में जाकर बस गए थे वो वहाँ सबसे अधिक सफल गैर यूरोपीय समूह बन गए। उन्होंने अमेरिका में भारत की नई छवि प्रस्तुत करने में सहायता भी की। भारत और अमेरिका के बीच सन 2003 में लगभग कहते $18 बिलियन का व्यापार हुआ और ये सबसे बड़ा जो था काफ़ी बड़ा व्यापार था। और इस संबंध में सबसे अधिक उत्साहवर्धक बात यह रही कि अमेरिका को जो है $13 बिलियन भारतीय निर्यात किया गया और भारत को जो है $5 बिलियन अमेरिकी निर्यात हुई। परंतु अमेरिका और चीन के बीच जो है $180 बिलियन का व्यापार हुआ और चीन ने अमेरिका को 152 बिलियन का निर्यात और अमेरिका ने 28 बिलियन का निर्यात चीन से किया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि चीन का केवल 27 शहर की संपूर्ण भारत में किए गए अमेरिकन निवेश से अधिक निवेश अपनी ओर खींच लेता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था इंडिया और जो है अमेरिकी जो है संबंध, यानी अमेरिका के साथ भारत का संबंध उतार चढ़ाव की नीतियों से बनी हुई थी। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ी जो यहाँ उतार चढ़ाव थी, यहाँ गलतफहमियों का उतार चढ़ाव थी। पाकिस्तान की तरफ से हर समय जो है अमेरिका को गलतफहमी प्रस्तुत की गई, जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका का संबंध बिगड़ता भी गया और संभलता भी गया। अगर वर्तमान वक्त की बात करें तो इंडिया के साथ अमेरिका का संबंध बहुत ही अच्छा है। दोनों देश अच्छा जो है सभी चीज़ों में अपने आप को अग्रसर करता है और अमेरिका जो है भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हम सोवियत यूनियन के साथ उसका भारत का संबंध के विचार करेंगे और समझेंगे कि अमेरिका और सोवियत यूनियन में किस तरह के विचारधारा है और कैसा संबंध है। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना। इसका हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है आपने। इसमें दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का आपने सहायता करना है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके फ़ायदे में रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा और आप कई वीडियो से अनभिज्ञ भी रह जाइएगा। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो तिरपान स्टडी सेंटर का कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, आपको वो टॉपिक आएगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इससे आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर के सारे वीडियो उपलब्ध होंगे।